Good evening, everyone, and a very, very warm welcome. A very, very happy welcome. And the summer lights are on. You can also see that I have a new setup now to come and meet you all every week. And Pan is right here. So, Pan has joined a reading club every week just to read. Reading is an important need. That's what his mummy says. Pan is going to set his little book corner and all his books. And you know how his reading corner looks? It's just got a lovely cushion and it's got a lot of books around. And Pan has this big wonder in each book that can be found. He has a cushion and Mama's dupatta to make it look like a tent, and he just go down and bend and read his books. His books are big and small. His books are short and tall and thick and thin, and they're all lying in this beautiful Jhola library. You can find a lot of books within. Pan is listening to stories every day and has a special time to read because reading is a special need. Pan can listen and blend to make words from sounds. He just loves every word around. Oh, what is this? What is this? It is a bag, and we have a very special person who wears the bag of books on his back. So he carries a library on his back. And to bring in this wonder of reading, this wonder of very, very beautiful work, we have Faraz here. A very warm welcome, Faraz, to you. Thank you, ma'am. Thank you, Sonia, ma'am. Good evening to all. एंड फराज ने हमें झोला लाइब्रेरी का एक कॉन्सेप्ट कुछ महीने पहले दिया था और मुझे इतना अच्छा लगा फराज, जब मैंने ये 100 डेज टू रीडिंग प्रोग्राम के बारे में पढ़ा तो पहला थॉट मुझे आपका आया कि ये जो गवर्नमेंट चीजें सोचती है या हम लोग प्लान करते हैं चीजों को, उनको किस तरीके से ऑलरेडी आप जैसे लोग लाइव कर चुके हैं. यू नो, पीपल विल आस्क अस हाउ डू दीज प्रोग्राम्स गो लाइव. Well, they go with people like you. तो पहले तो आप सबको इस ब्यूटीफुल झोला बैग लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए. बिल्कुल मैम. सो जैसा कि मैम आपने बताया, झोला लाइब्रेरी जो है, ये इसका जो कॉन्सेप्ट था मैम, इसका कॉन्सेप्ट जो है व्हेन आई वाज वर्किंग इन उत्तराखंड, जब मैं उत्तराखंड में काम कर रहा था, देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं उसके साथ जब काम कर रहा था तो प्राइमरी स्कूल्स में जाना होता था. प्राइमरी स्कूल्स पे, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में जाना होता था. बहुत सारे स्कूल्स में अलग अलग ब्लॉक्स में जाना होता था मैम. वहाँ पे टीचर्स के साथ काम करना होता था, बच्चों के साथ काम करना होता था. तो एक जो चीज बहुत मन में खटकती थी कि बच्चों के पास कुछ पढ़ने के लिए बहुत सारे कुछ स्ट्रक्चर्ड चीजें नहीं थी, या बुक्स नहीं थी, या कोई लाइब्रेरी जैसी छोटी मोटी नहीं थी. तो कई बार लगता था कि बच्चे पढ़ने लिखने की प्रक्रिया से वंचित हैं. तो मन में ये बात आई कि क्यों ना कुछ बुक्स जो हैं, कुछ किताबें जो हैं अच्छी सी कहानियों की, उसको एक झोले में रख लें और वो बच्चों तक ले जाएं, और जो भी किताब बच्चों को पसंद होगी वो अपनी पसंद की किताब ले लेंगे उसमें से, और पढ़ने लिखने में उनको मजा भी आएगा और वो इस प्रोसेस में शामिल होंगे. तो वहीं से मैम इसका ये विचार आया था झोला लाइब्रेरी का. Such an interesting concept that with so little, you know, one bag with books, you can actually think of starting a whole library center for children. It doesn't matter वो center कहाँ पे हो, वो आपके गली में हो सकता है, आपके गांव में हो सकता है. It can be in your buildings, it can be in your libraries, in your gardens. So suppose you even have a bag and you become the auntie with the bag or the uncle with the bag. Imagine every day, slowly children may just start coming and sitting with you and read. One thing I have put down two posters. One says literacy into the heart of India, which is more to do with academics. And one is reading into the heart of India, जहाँ पे आप just रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल के कुछ पढ़ें. You know, so I think that is one very important thing. I also want to tell the audience that
Faraz works a lot with the Anganwadi teachers and parents and Sevikas and children. So, Faraz, a little bit about your experience as you work with this wonderful segment of people. एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, जो आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ चाहे काम करने की बात हो, चाहे उनसे जुड़े उनके अनुभवों को जानने की बात हो, अलग-अलग स्टेट्स की अगर हम बात करें, चाहे वो यूपी के आंगनवाड़ी की सेविकाएँ हों या फिर आपके राजस्थान के या कहीं के भी इस तरह से, तो एक बहुत ही डाइवर्सिटी देखने को मिली उनके अनुभवों को जोड़ के, जहाँ पे वो बाल गीत के माध्यम से बच्चों को अपनी आंगनवाड़ी में शामिल करते थे, उसके पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल करती थीं। आंगनवाड़ी सेविकाएँ जो होती थीं, उनकी जो आंगनवाड़ियाँ होती थीं, वो अलग-अलग तरह के पोस्टर से सजी होती थीं, जिसमें वो बच्चे पढ़ने की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते थे। खेल-खेल के माध्यम से वो बच्चों को सिखाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ, जो आंगनवाड़ी सेविकाएँ हैं बहुत परिश्रम कर रही हैं, बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल कर रही हैं खेल-खेल में। तो ये एक अलग तरह का अनुभव नज़र आया मैम। जब आप ये जो छोटी सी लाइब्रेरी अपने अपने बैग में आप लेकर पहले जाते थे, हुँ, ऐसा हुँ। एक्सपीरियंस, कोई अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहे कि ये कोई एक ऐसा कोई बच्चा, कोई हो सकता है एडल्ट हो जो इंटरेस्टेड हो, तो मैं अगर आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताएं प्लीज। बिल्कुल मैम, ऐसे कई सारे अनुभव होते थे जहाँ पे जो हमारी जो झूला लाइब्रेरी होता था उसमें तो अलग-अलग का किताबें होती थी। जैसे कोई कहानी की किताब जिसमें बहुत सुंदर-सुंदर चित्र हैं, और कोई ऐसी किताब जिसको देख के बच्चा कहता था कि जिसमें हाथी बना है, यही किताब मुझे चाहिए पढ़ने के लिए। ये या जिसमें कोई किसी का जानवर बना है या कोई गाँव के किसी व्यक्ति की तस्वीर बनी है, तो उन चित्रों को देखकर बच्चे बहुत आकर्षित होते थे और कहते थे मुझे भोलू मदारी की कहानी सुननी है, भोलू मदारी की कहानी पढ़नी है। तो इस तरह की किताबें जब वो माँगते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, बच्चे जब माँगते थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग कॉन्सेप्ट अभी बात कर रहे थे कि अगर हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलते हैं रीडिंग के लिए या ग्रामर के लिए, जी। starts from the experiences, it starts from what is around the children, उनके आसपास के अनुभव से आप बच्चों को प्रेरित करते हैं और उनको फिर क्यूरोसिटी होती है कि इसमें हम शायद और सीखें और पढ़ें। बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल। एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है। एक और चीज हम बात करेंगे प्लस, जैसे अम, आप गाना गाए तो मैं गाना गा सकती हूँ, आप मुझे राइम सुनाए तो मैं राइम्स सुन सकती हूँ, आप कोई चीज ड्रॉ करें, जैसे आप लेटर्स भी ड्रॉ करें तो मैं उसको ड्रॉ कर सकती हूँ। लेकिन क्या अगर एक फराज पढ़े तो उसको देखकर क्या मैं पढ़ सकती हूँ, या मेरे लिए एक स्पेशल रीडिंग इज एक्वायर्ड आर्ट, उसके प्रोसेसेस अलग होते हैं? आप कैसे आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सहमत है मैम कि जो पढ़ना है वो एक प्रक्रिया होती है, जो मतलब पहले एक उसकी स्टेज होती है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ही आ जाता है। तो उसकी स्टेजेस पे जब वो बच्चा पहुँचता है, तभी मैम वो आती है। वो एक सीखना पड़ता है उसको, जो मेरा मानना है मैम। So, also for the audience and all of us watching, reading is not a natural skill. A lot of it is done with processing. You have to process it. There has to be an order. There has to be a systematic introduction to reading. And most importantly, it has to be a conscious effort on everybody's part to make reading a part of the daily life. नाउ फराज, हमने एक ये 100 डेज प्रोग्राम का हमने जैसे टॉपिक लिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने एक 14 वीक्स में एक ब्रेकअप दिया है, जो हम एंड ऑफ द प्रोग्राम बात करेंगे। लेकिन आपके थॉट में आप और मैं, एक आम सिटीजन, एक आम पर्सन, इस चीज में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्योंकि एक तो हर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट शुरू करती है उसके कुछ दायरे वो देती है, लेकिन क्या हम सब अपने अपने छोटे छोटे तरीके से इसके साथ जुड़ सकते हैं और इसको थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं?
बिल्कुल मैम, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से कि हम सभी के कंट्रीब्यूशन से जो ये 100 डेज़ का रीडिंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसमें हम कुछ ना कुछ छोटी-छोटी चीज़ों के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको साकार बना सकते हैं। कोई भले कुछ हम हमारे पास कुछ अगर बुक्स हैं, तो वो भी हम डोनेट कर सकते हैं या कुछ इस तरह का रीडिंग कैंपेन है छोटा-सा हम अपने अपने शहर में, अपने आस-पास के स्कूल्स में स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से बहुत सारे लोग जो रीडिंग 100 डेज़ का जो प्रोग्राम है, उसमें वो शामिल होंगे और इसका लाभ ले सकेंगे। तो ये मुझे ये वर्ड बुक डोनेशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सबके घरों में देखिए जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं फराज, एक एक जी, आता जा रहा है। तो अगर जी, आपके घर में कुछ ऐसी किताबें हैं जो हम पढ़ चुके हैं और बिल्कुल, पढ़ी नहीं है, बिल्कुल, किताबों को लीजिए और जरूर ऐसे लोगों को दीजिए जो किताबों से वंचित हैं। बिल्कुल, किताबें पढ़ना चाहते हैं लेकिन किताबें उन तक पहुंचती नहीं है। So I think this is a beautiful thing that start with small processes of allowing people to share your things. I think that's a बिल्कुल, lovely idea. तो ये हम 14 हफ्तों में हम एक झोला लाइब्रेरी बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। बिल्कुल, हाँ ही आप उसमें अपनी फेवरेट किताबें डाल रहे हैं, बट आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी को पढ़ाने में और उसको रुचि दिलवाने में। सेकंड थिंग इज getting your book donations. I think that's a beautiful concept, absolutely. फराज, अब मैं आपको एक चीज और पूछूंगी। आपसे जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग प्रोसेसेस यूज करते हैं। ये जो 100 डेज ऑफ रीडिंग प्रोग्राम है, इसमें भी जो सजेशंस हैं वो बाल वाटिका के लिए अलग है, थोड़े बड़े बच्चों के लिए अलग है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप हमारे साथ बात करिए प्रोसेसेस के बारे में कि किस स्टेज पे कैसे प्रोसेसेस हो सकते हैं। बिल्कुल मैम। तो जैसा एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर अगर हम देखें जो 100 डेज़ का प्रोग्राम है, तो अगर ये जो मैम रीडिंग कैंप प्रोग्राम है, तो अगर हम बात करें जो पढ़ने का प्रोसेस है, वो प्री क्लासरूम से बात करें और वो क क्लास 2 तक अगर हम बात करें, अर्ली लिटरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी जो होती है, अगर हम उसकी बात करें तो बहुत सारी किताबें ऐसी हो सकती हैं जो कहानियों से सम आधारित हों, जो चित्रों पे आधारित हों। जो जो एक फर्स्ट स्टेज होती है बच्चे के सीखने के लिए, वहाँ पे वो कुछ जब सुनता है, तो सुन के ही वो पढ़ने के प्रोसेस में धीरे-धीरे शामिल होने लगता है जब आने वाली क्लासेस उसकी शुरू होती हैं। वो जब सोचता है कि हाँ, अच्छा अब पिंकू सियार ने आगे क्या किया होगा या भोलू बंदर ने जब वो गिरा होगा गड्ढे में, तो आगे क्या हुआ होगा? उसकी कल्पनाओं को एक उड़ान मिलती है। फिर पूछते हैं, अच्छा बताओ अब बेटा क्या हुआ होगा? तो वहीं से उसका जो पढ़ने का, सोचने का जो नज़रिया है वो विकसित होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे वो शुरुआत कर चुका होता है। तो मेरा यही मानना है कि धीरे-धीरे जब वो बड़ी कक्षाओं में जाता है, तो वो पढ़ने की प्रक्रिया में शामिल होने लगता है, क्योंकि वहाँ उसने शुरू में सुनने की प्रक्रिया में वो शामिल रहा है, इस तरह की रोचक चीज़ों से। वंडरफुल। तो फराज, क्योंकि मैं एक बहुत सारे टीचर्स और बच्चों के साथ बात करती हूँ और काम करती हूँ, तो मैं एक बहुत जल्दी से फ्लैश करूंगी वो चीजों को जो इस प्रोग्राम का बेस बन सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट मैं बात करूंगी एटीट्यूड, बिल्डिंग अ रीडिंग एटीट्यूड, राइट। या लेटर रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, रेडीनेस, रेडीनेस, तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट, माइंडफुलनेस जो आप कह रहे थे ध्यान से सुनना, टॉक टू लिसन, जब आप बच्चों से बात करते हैं तो उनसे सुनिए भी। तो आप वोकैबुलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेपिटेशन, विजुअल मेमोरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, दो चीजों में अंतर करना वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा शब्दकोश, अ ग्रेट वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, wonder, create this excitement and wonder to peep inside the books and see and wonder what is there to read. कंसोलिडेशन, जो आपने पहले लेवल्स में काम किया है उसको कंसोलिडेट जरूर करिए। एक डिसिप्लिन बनाइए रीडिंग का, जो बहुत कम हम देखते हैं घरों में, स्कूल्स में रीडिंग डिसिप्लिन नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन होती है, राइटिंग होती है, कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड होता है, लेकिन रीडिंग डिसिप्लिन नहीं होता। उसकी कोशिश करिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आज आप 4 शब्द पढ़े फिर 20 दिन तक ना पढ़े। तो कंसिस्टेंट रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है।
आज 4 तो कल 6 तो कल 8 तो कल 10 12 एंड जो आपने पहले 4 शब्द पढ़े हैं तो उसका भी। तो आई थिंक ये एक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ब्यूटीफुल क्रिएटिव इमेजिनेशन, बच्चों को उड़ान दे दीजिए, बोलिए कि ये है, क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं? तो अगर एंड एक्टिविटीज, इतनी सारी रिसोर्सेज बनाइए ताकि बच्चा लाइफ स्किल्स के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में इसको जोड़ के लेके चले। अब फराज, क्योंकि हमने बेस बना लिया है, हमारी रेडीनेस तैयार हो गई, हमारा झोला लाइब्रेरी तैयार हो गया, हमारा मन बन गया कि हमारी ये 15 बुक्स हैं जो हमने जाके किसी को देनी है। एंड यू नो, नॉट ओनली जस्ट गिविंग अवे, it's also very important to see that they are being used. Don't just, you know, give it away and then don't do anything about it. That's not contribution. That's just one part of the contribution, I would say. So very important. And you know, now Faraz, हम ये जो 14 weeks का प्रोग्राम है, it's very interesting. शुरू होता है स्टोरी टेलिंग से, और स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल स्किल है। एंड इसके तकरीबन 5th वीक में जाके एक कॉन्सेप्ट है रीटेल अ स्टोरी। तो चलिए आप मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाइए और देखिए कि मैं ध्यान से सुनती हूँ कि नहीं। बिल्कुल। तो मैम आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसमें एक चालाक खरगोश होता है, चीकू। और चीकू क्या करता है, चीकू हमेशा खुद को बहुत होशियार समझता है और लोगों को, अपने जंगल में लोगों को बेवकूफ बनाता रहता है। कभी किसी से कुछ उसने कभी पिंकी लोमड़ी से कुछ मांग लिया और बोलता है वापस कर दूंगा। कभी उसने भोलू बंदर से कुछ मांग लिया, कहता है वापस कर दूंगा, लेकिन वो वापस नहीं करता है। तो एक दिन क्या होता है, भोलू बंदर और पिंकी लोमड़ी उसको सबक सिखाने की सोचती हैं कि आज चिंकू खरगोश को सबक सिखाना है। और वो क्या करते हैं, वो दोनों लोग एक गड्ढा बना देते हैं और उसको एक चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं चिंकू खरगोश को, और बोलते हैं कि आओ, बहुत सारे खाने की चीजें हैं, खाओ और ले जाओ। तो चिंकू खरगोश बहुत खुश होता है और वो जाता है। और वो जैसे ही कुर्सी पर बैठता है, वो देख नहीं पाता है, वो धड़ाम से अंदर चला जाता है और वो लोग ताली बजाने लगते हैं। और चिंकू खरगोश को अपनी गलती का एहसास होता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और लोगों की चीजें वापस कर देगा। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। ऑल राइट। तो जैसे आप कहानी बोल रहे थे, मैं अपने बैकग्राउंड को भर रही थी, क्योंकि रीडिंग इज एन आर्ट एंड इट इज एन एक्वायर्ड स्किल। अब स्किल को नर्चर करने के लिए हमें इतना कुछ चाहिए। अब नाउ रेपिटेशन। तो चलिए मैं याद कर लेती हूँ कि मुझे देखो भोलू का नाम याद आ गया, चिंकी का नाम चिंकू है ना, और पिंकी लोमड़ी। अगर मैं ध्यान से नहीं सुनती तो मुझे नाम नहीं याद होते, है ना। तो जब आप बच्चे को पूछते हैं तो ये खरगोश था और वो सबकी चीजें ले लेके भाग जाता था और सबको झूठ बोलता था। एक गड्ढा खोदा, उसको बुलाया और कहा कि तुम आ जाओ और हमारा एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बन जाओ। तो जब वो गड्ढे पे बैठा तो वो धड़ाम से गिर, फिर मैं भूल गई। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पता चलेगा कि बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो रीटेलिंग अ स्टोरी इज अ ब्यूटीफुल आर्ट, क्योंकि उसमें एक फ्लो आता है, एक सीक्वेंस आता है, एक प्रोसेस आता है, एक ऑडिटरी मेमोरी आती है। जैसे जैसे ऑडिटरी मेमोरी आएगी, वी कैन स्टार्ट एडिंग वर्ड्स टू इट, कि हमने बंदर दिखाया, खरगोश दिखाया, so it also becomes a visual memory and that's how processes can happen. तो जो इन्होंने ये एक्टिविटीज बताई हैं, जिन्होंने नाम बताए, एक्टिविटीज की लिस्ट बताई है, I think also as teachers, as parents, don't look at just the activity. Look at the reason behind the activity and what all can you do with the activity. One is just retell a story. आपने कहानी बोली, मैंने कहानी बोली, but retelling में sequence आता है, मेमोरी आती है, आपकी बच्चे की ड्राइंग हो सकती है। तो वहां तक मत सीमित रखिए। They have given you a base. You can grow that base beautifully.
अब एक कहानी जिसको कहते हैं टाइटल ट्री, अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आपको मुझे उसका टाइटल देना है। इज दैट ओके? बिल्कुल। So once upon a time, there was a little duckling. Now this duckling was a very, very smart duckling, and there was a little chick. Everything the duckling did, the chick copied. The ducklings went running, the chick went running and said, "Me too." The duckling sat down, the chick sat down. The duckling drank water, the chick drank water and said, what did they say? Me too. वो आपको बोलना है ना? And then one day the duckling jumped into a pool, and the chick also jumped into the pool, but the chick could not swim. Then the duckling saved the chick and told the chick, "Don't copy me all the time." क्या आप इस स्टोरी का टाइटल बता सकते हैं? क्या हो सकता है? मैम, कॉपी कैटर्स चिक, ओके, आई कैन से। ओके, और कुछ, और कुछ? और मैम हो सकता है कि एवरीबडी कैन नॉट बी डकलिन। Okay, everybody can't be a duckling, all right. Or it could, yeah, so it could be action words, it could be या the chick, so multiple options. So that's another या beautiful activity. एक और बहुत खूबसूरत एक्टिविटी उन्हें सजेस्ट करी है. It's an activity that says creating a story newspaper. मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा कि आप अपने क्लासेस में, अपने एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ बच्चों से करवा सकते हैं कि what did you do about creating, what are the stories you read. तो इट कैन बी डन सो सिंपली फॉर अस कि अगर आपने एक कहानी सुनाई, जैसे आपने चीकू खरगोश की कहानी सुनाई और मैंने डैनी डकलिंग की कहानी सुनाई, तो हम दोनों ने अपने अपने पेज पे ड्राइंग कर ली, आपने अपनी चीकू की कर ली, मैंने अपने डैनी डकलिंग की कर ली, फिर हमने उनको जोड़ दिया। आपका डैनी डकलिंग जो गया और बच्चों के जो जुड़ते गए, तो उसका एक हमने हफ्ते का न्यूज़पेपर बना दिया। तो जी जब उसको खोल के पढ़ेंगे तो उसमें हम सबकी कहानियां होंगी, तो बच्चों के पास एक कहानी का कोश हो जाएगा। इट कुड बी एज सिंपल एज दैट, यू नो, इट डजंट हैव टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जब मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा फिर, तो मुझे लगा कि हम सब अपने अपने वर्जन्स के साथ, अपने अपने थॉट्स के साथ इसके साथ जुड़े, जो ये बेस एंड ये रिसर्च बेसिस होते हैं, जो भी ये प्रोग्राम्स आते हैं, दे आर वेरी वेल रिसर्च्ड. Only thing is that we all can also have to look at, oh, what can we do to it, you know. So I think this is a beautiful thing to create a story newspaper. I love that. Up questioning about characters, asking them about characters. तो जो फराज ने कहानी बनाई उसका मेन कैरेक्टर कौन था? चीकू खरगोश. So talking to them about characterization is important. अब थीम्स पे क्या क्या कर सकते हैं हम फराज बच्चों के साथ? कोई थीम लें तो हम रीडिंग मटेरियल कैसे बना सकते हैं? जैसे आप लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो आप लोग थीम बेस्ड रीडिंग मटेरियल कैसे देते हैं बच्चों को? और मैम अलग अलग थीम्स हो सकती हैं, जैसे बच्चा अपने आसपास की चीजों के बारे में जानना चाहता है, उसके आसपास कोई पेड़ है या कोई तो पौधे रीडिंग हैं। के लिए आप क्या यूज करते हैं फराज? जैसे आप लोग जब बच्चों को एक थीम दे देते हैं, थीम के बारे में बता देते हैं, कहानियां बता देते हैं, कुछ पढ़ने के लिए बच्चों को हम क्या देते हैं? पोस्टर्स देते हैं, फ्लैश, ऐसे कौन सी चीजें देते हैं जो इफेक्टिव होती है? मैम कुछ हम उसको डिस्प्ले करने के लिए कक्षा और क्लास में पोस्टर्स भी देते हैं, जिसमें पूरा उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसकी मदद से भी बच्चे पढ़ते हैं। वो और डिस्प्ले चार्ट्स होते हैं, कुछ कुछ किताबें होती हैं, तो ये सारी रिसोर्सेस की मदद से बच्चा पढ़ता है, पढ़ना सीखता है। कुछ कुछ अभी तो मैम काफी कुछ मोबाइल की मदद से भी कुछ ऐसी कहानियां सुनने में उसको मदद मिलती है, तो वो भी बहुत दिलचस्पी से सुनता है। तो जब हम कहानियां देते हैं उनको, डू यू फील ये जो रीडिंग बैंड्स होते हैं, जो नीचे रीडिंग बैंड्स होते हैं डिजिटल में, वो यूजफुल होते हैं बच्चों के लिए? बिल्कुल मैम। कि सुन रहा है और साथ में एक बैंड पे रीडिंग चल रही है, आपको लगता है ऐसी चीजें यूजफुल होंगी बच्चों के लिए? हाँ मैम, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो बनता ही है कि जो बोला जा रहा है वो बच्चा उसको थोड़ा सा तालमेल बना रहा है उससे,
तो मैम इसका तो फायदा मिलता है मैम, इस टेक्नोलॉजी से इसका फायदा मिलता है बच्चों को, वो थोड़ा सा एक सामंजस्य बनाता है इससे मैम। इट डज मेक अ डिफरेंस। इवन यस आप मैम। बच्चों को कहानियां सुनाते हैं जब आप रीड जी मैम। करते हैं, तो जब बच्चा फिंगर मूवमेंट कर रहा होता है बिल्कुल बिल्कुल टू राइट, वो भी एक प्रक्रिया है। ऊपर बिल्कुल। देखना, लेफ्ट टू राइट जाना, these are all reading processes. They are very very important to do. If we are conscious about all of this, that not only is letter recognition, phonic sounds, blending, understanding that there are sounds and words, growing a big vocabulary, even something as simple as cooking up a small thing and giving them a vocabulary. I would go a step ahead. I would say अपने घर को लेबल कर दीजिए। आपको घर की लेबलिंग में आप एटलीस्ट 200 नाउन्स उनको सिखा सकते हैं, उनको एटलीस्ट 100 वर्ब सिखा सकते हैं, आप उन्हें पोजीशन सिखा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जो भी आप आपके एनवायरनमेंट में है, आप उसको रीडिंग में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करते चले जाइए। जैसे मैम एक कॉन्सेप्ट था वर्ड वॉल का, वर्ड तो वर्ड वॉल की मदद से जो भी उससे बच्चों की जो वोकेबलरी थी उसको डेवलप करने में बहुत मदद मिली। टीचर्स ने उस थीम से रिलेटेड वर्ड वॉल बना दी। कोई भी अगर वाटर की थीम है, प्लांट्स एंड एनिमल की थीम है, तो उससे संबंधित वोकेबलरी का वर्ड वॉल बना दिया। उससे बच्चों का बहुत फायदा हुआ मैम रीडिंग करने से और उनको एंड अपना वोकेबलरी डेवलप करने में। आई थिंक द वर्ड वॉल इज बहुत बहुत हद तक बहुत यूजफुल चीज है ये, और मैं बहुत यूज करती हूँ इस वॉल्स को। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी शब्द को बार बार देखते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं एक रीडिंग प्रोसेस आपका बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। ये भी माना जाता है कि जितनी जल्दी आप बच्चों के साथ रीडिंग करें, जितनी अर्ली करें, उतना अच्छा। आपको भी ऐसा लगता है कि अर्ली रीडिंग इज गुड, मतलब पहले बहुत पहले से बच्चों की किताबें लेके बैठना चाहिए उनके साथ? यस मैम, क्योंकि मैम ये जो शुरू के साल होते हैं ये बच्चे के लिटरेसी ये रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैम। अगर शुरू में ही बच्चा पढ़ना इस तरह की प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होगा तो बाद के स्टेज में तो मैम बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो मैं तो अर्ली एज को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैम। यहाँ पे एक 100 डेज रीडिंग में एक बहुत सुंदर कैप्शन है, डियर इसमें एवरीथिंग एंड रीड। मतलब आज हमारा को कितने भी बिजी हो, हम सब छोड़ देंगे और हम 5-10 मिनट पढ़ेंगे। आई थिंक ऑल्सो जिस एनवायरमेंट में हम काम करते हैं फ्रेंड, बहुत सारी वर्किंग मदर्स हैं, बहुत सारे मदर्स हैं जो बहुत आवर्स ऑफ वर्क करती हैं। तो उनके लिए ये एक मैं जरूर सजेशन दूंगी कि आप चाहे 5 मिनट निकालिए, लेकिन 5 मिनट कुछ तो वक्त बच्चों को चलो पढ़ते हैं ऐसे बोलिए। और जो जो एक एक और प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, में बहुत दफा पेरेंट्स मुझसे होते हैं कि मैडम हमको पढ़ना नहीं आता, हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं, हम इनकी मदद कैसे करें? फराजा बताइए, जो खुद नहीं पढ़ सकते और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम क्या करें कि ये 100 डेज ऑफ रीडिंग एक्चुअली गोज टू द हार्ट ऑफ इंडिया? आपके पास कोई थॉट सजेशन है तो? बिल्कुल मैम, अभी तो जैसे मैंने बताया कि जैसे स्टोरी टेलिंग है, तो स्टोरी टेलिंग भी एक बहुत अच्छा माध्यम है और बहुत सारे अभी तो ऐसे संसाधन आ गए हैं जिससे जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं वो मतलब वो पढ़ना सीख सकते हैं। जितना वो सुनेंगे उतना उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और वो बच्चों के साथ छोटी-छोटी कहानियाँ पढ़ के सुना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये मैम ऐसा वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ सकते हैं मैम। नहीं पॉसिबल है। और हुँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हुँ। झोलू में आप लाइब्रेरी बनाइए, बच्चों तक पहुंचाइए, और इट कम्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे मुझे लगी कि हम एक दफा जरूर बात करें उस बारे में, जो बाइलिंगुअल बात कर रहे हैं, बाइलिंगुअल। तो कुछ दिन पहले आपके आंगनबाड़ी के प्रोग्राम से मुझे मैंने पूछा कि बच्चे कैसे पढ़ पाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैम वो हिंदी पढ़ लेते हैं और फिर इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा कि प्योर भाषा में आपने बच्चों की मातृभाषा में उनको कहानी अपनी अपनी सुना दी। जैसे हमने कहा कि एक कौवा बहुत चतुर था, वह कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर लेता था। वैसे ही हमने एक इंग्लिश की बुक उठाई। काका क्रो वॉज एन इंटेलिजेंट क्रो, ही कुड डू एनी वर्क इजिली। एक दिन बहुत गर्म दिन था, हाँ, इट वॉज अ हॉट सनी डे। तो
हम अगर पूरी कहानी एक भाषा में पहले बच्चे को सुना दें और ऐसे कन्वर्ट ना करें जैसे आपने पूरी कहानी सुना दी। गर्मियों के दिन थे, सूरज अपनी गर्मी चारों ओर फैला रहा था। तो जब बच्चों को आप किताबें दें तो रीडिंग प्रोग्राम में टर्निंग ऑफ द बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मेकिंग डॉग ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीपिंग द बुक ब्यूटिफुली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक अगर हम ये सब चीजों को गौर करें तो इट वुड मेक अ डिफरेंस, नो। एंड जैसे मैं आपको कहती हूँ फराज कि आपकी झोला लाइब्रेरी मेरे बड़े काम आती है। मैं अपने झोले में आपकी चीजें बना के बुक्स, और मैं एक और कॉन्सेप्ट है फराज जो मैं चाहूंगी कि मैं आपसे जरूर बात करूं इस पॉइंट पे। जब आपने मुझे झोला लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट दिया था तो मैं सारी किताबें एक झोले में डाल लेती थी और फिर मैं उसको डिस्प्ले करती थी या उसके बारे में बात करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग झोले बनाने शुरू कर दी कि अब ये कहानियां हैं हिंदी इंग्लिश एक साथ, अब ये कहानियां हैं थीम पर, अब ये कहानियां हैं इस पे। आई थिंक दैट बिकेम अ बेटर टूल फॉर मी। तो जहां पे आपने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया, आपने एक दफा एक झोला मुझे दिखाया, वो पता नहीं अब कितने स्कूल्स में जा चुका है, कितने लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर इंसान जो उस बारे में जानता है, एवरीबडी हैज वेरी डीप एप्रिसिएशन फॉर दिस आइडिया ऑफ योर्स। ये मैं बिल्कुल ऐसे विद अ क्लैप बोलूंगी, यू हैव गिवन दिस 100 days of reading a beautiful poem in something so simple. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हमारे लिए आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज है जो जो भी सुन रहा है उसको अपने साथ लेकर जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई होप आप खूब सारे झोले बांटते रहें और लाइब्रेरीज बना के यू टेक दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम इनटू द हार्ट ऑफ माय कंट्री। थैंक यू। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। Square, square, panda.